aspirants, a very warm welcome for all of you to our channel. And today we are hosting a very special session which is about careers in law. और इसके लिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं with a very nice and a very experienced guest. And she is a company secretary and also legal counsel at HarperCollins. So we are glad to introduce all of you to Ms. Gunjan. So welcome Ms. Gunjan to our podcast session. Thank you so much, Naman. Thanks a lot. So I would like to introduce a brief about our viewers. So all the students are gearing up for all sorts of competitive examinations. So someone might be in their class 11th and 12th and someone might have done their 3-year BCom, BBA and might be aspiring for 3 years law program. Right. So likewise we have a mixture of all the law aspirants. But our session is going to cater all of them. Right. So let's start. Sure. First. So, ma'am, please explain about your educational journey. Like, आपने क्या किया 10th में, 12th में, and आप कैसे law तक पहुँचे? Right. So, Naman, to be very honest, since class 10th, as a child, आपको पता होता है that you know which subjects you are inclined towards. आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, साइंस कितना पसंद है, मैथ्स कितना पसंद है. Correct. So similarly, one thing was very clear that science is not my thing. वो मुझे पता था. And so the obvious option for me was commerce. So now with parents. होता है they want you to pursue different things, but still once you tell them that why you're choosing something, then it makes more sense. So I opted for commerce, and my choice of subjects being law is something which I knew that after 10th and 12th I wanted to go towards legal side, so it was very clear. And so as a sequence to commerce and then as a sequence to your different economics and different business laws, environment laws, it was more clear that how I'll go forward towards the legal career. So one thing you mentioned here कि आपको 10th 12th के बीच में कहीं से एक inclination था कि आपको legal side जाना है. तो ऑफन टाइम आई ऑल्सो गेट दिस क्वेरीज जहाँ बच्चे मुझे बोलते हैं कि वो 10th से ही दे आर फीलिंग लाइक उनको लॉ करना है. एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं थी. आई जस्ट डिड लॉ एज अ रैंडम पार्ट. बट आई लाइक दिस पार्ट कि आपको इंक्लिनेशन था. तो क्या प्लीज व्यूअर्स के लिए ये बता सकते हैं कि मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक पॉइंट, ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट जिससे आपको इंक्लिनेशन आया? Inclination, it was more towards to see how this whole industry works as lawyers, advocates. वो काफी fascinating लगता था. But more to that, जब 12th में गए, so there was a bigger challenge कि commerce में क्या, what would you pursue, BCom करोगे कि your combined MBA करोगे, and CS उस time to be honest was nowhere in the list. Correct. एंड सो हमारे स्कूल में इट्स जस्ट पर्सनैलिटी, आपका एक टेस्ट असेसमेंट वो स्कूल ने ही करवाया था और उसमें उन्होंने CS वॉज इन द थर्ड ऑप्शन. तो इंक्विजिटिवनेस तो रहती है कि अगर लिखा है तो क्या लिखा है मेरी पर्सनैलिटी को देख के. सो देन CS फिर मैंने सर्च किया एंड लाइक अगर स्टूडेंट्स इफ दे सर्च CS तो सीधा दिखाता है कि यू विल सिट विद द बोर्ड एंड यू विल बी द मैनेजिंग डिसीजन मेकर. सो एज अ 12th क्लास स्टूडेंट्स वो भी आपको अच्छा लगता है, बहुत फैसिनेटिंग लगता है कि हाँ. सो दैट इज समथिंग. फिर CS फ्रॉम वेयर आई कम, आई एम फ्रॉम शिमला, तो वहाँ पे देयर वाज माय फादर्स फ्रेंड, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया. ही वॉज अ CS इन वन ऑफ द सब यूनिट्स ऑफ अ गवर्नमेंट एंटिटी. सो ही गाइडेड मी कि CS है क्या, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, एंड वहाँ से आई थिंक देन आई पिक्ड इट अप कि हाँ ये मुझे करना है. ग्रेट. तो आपका जो कॉलेज लाइफ था उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा कि हाउ इट वाज. एंड आई गेस आप बता रहे थे कि आपने 3 ईयर की LLB की है. तो वो इनिशियल 3 इयर्स आपने जो है कहीं आपने ग्रेजुएशन किया होगा, कंपनी सेक्रेटरी की होगी, तो मतलब उसकी लाइफ कैसी थी? देन 3 ईयर की लाइफ LLB वाली कैसी थी? सो दोनों इफ यूल सी CS एंड LLB का लाइफ बहुत डिफरेंट है. LLB यू हैव अ कॉलेज ऑफ कोर्स एंड इट्स लाइक एनी अदर कोर्स यू आर डूइंग आफ्टर योर 12th. बट CS, आई वुड से CS
पहली बार कंफ्यूजन लोगों को लगता है कि सीएस हाँ कॉलेज से किया होगा, पर सीएस कॉलेज से नहीं होता है. सो देयर इज एन इंस्टीट्यूट फॉर सीएस, जैसा आपका सीए का इंस्टीट्यूट होता है. आई गेस इट्स ICSI. ICSI, right? ICSI and ICSI also. There are two ways. या तो आप इंस्टीट्यूट की ब्रांच ज्वाइन कर लो, लाइक इन दिल्ली दे हैव ब्रांच, दे हैव क्लासेस, सो यू प्रॉपरली गो टू ऑल द क्लासेस इन द ICSI इंस्टीट्यूट. सेकेंड इज कोचिंग, एंड कोचिंग का बहुत रोल रहता है क्योंकि एज सच कॉलेज स्ट्रक्चर्ड नहीं है. यू हैव एन इंस्टीट्यूट, पर सब लोग इंस्टीट्यूट भी नहीं जा सकते. सो कोचिंग्स हर एक सिटी में दे आर डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स जो आपको एग्जाम्स क्लियर कराते हैं एंड दे हेल्प यू अंडरस्टैंड द टॉपिक. सो दैट इज वेरी डिफरेंट. मेरा कोचिंग का टाइम वॉज, आई वुड से I was more serious in coaching rather than college, क्योंकि आप एक माइंड में रहता है आपको क्लियर करना है, एंड देन यू हैव अ रूटीन टू इट, एंड क्लासेस आपका टाइम स्पेसिफिक रहती है. आप मिस करोगे तो आपको ज्यादा फील होगा. कॉलेज की क्लास मिस करोगे तो मे भी इतना ना लगे, पर आपने ये सीएस का क्लास मिस किया तो आपका पूरा एक कॉन्सेप्ट विल बी वाइप्ड आउट. मतलब एंड आई गेस जब क्लास मिस करने की बात आती है तो कॉलेज में हम चाहते हैं क्लास में करना डेलिबरेटली. आई रिमेम्बर कि कॉलेज में हम कभी कभी मास बंकिंग किया करते थे. वी क्रिएटेड अ व्हाट्सएप ग्रुप और उसमें सबको मैसेज कर दिया कि टुडे कोई भी क्लास नहीं जाएगा. सो exactly like you said, so there's a difference between the seriousness with which you approach both the careers, and CS of course you have to be more focused because आप देखोगे तो the clearance percentage is also not, मतलब इतने बच्चे नहीं कर पाते, तो you have to be focused कि हाँ करेंगे. It is also fun. टीचर्स आजकल कोचिंग क्लासेस में CS में दे आर वेरी फन, सो वो खुद नई चीजें लाते हैं. जैसे इवन यू गाइज हैव सो मेनी डिफरेंट ways of teaching children. So it's very, I would say it's very fun if you are inclined towards it. करेक्ट. एंड आई गेस मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि CS इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जामिनेशंस आफ्टर CA. तो चार्टेड अकाउंटेंट के रिजल्ट हम देखते हैं कि एनीवे 1% से लेस की उसमें क्लियरिंग होती है, CS जस्ट उसके बाद ही आता है. तो कंपनी सेक्रेटरी अगर आप परस्यू करना चाहते हैं तो इट्स अ राइट टाइम कि 12th के बाद इमीडिएट शुरू कर दें, ताकि आई रिमेम्बर कि फाउंडेशन लेवल इज वेरी इजी बिकॉज आई ऑल्सो गेव फाउंडेशन लेवल. सो इसके लिए आपको स्ट्रिंजेंट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. एज मैम टोल्ड अस दैट इट्स नॉट इजी एज कॉलेज, क्योंकि कॉलेज में आप थोड़े चिल मोड में रहते हैं, बट इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो आई रिमेम्बर कि कॉलेज में मैं क्यों फाउंडेशन दिया था, क्योंकि मुझे बोला जाता था कि कंपनी सेक्रेटरी प्लस लॉ इज अ डेडली कॉम्बिनेशन. अगर आप ये ऐसा कर लेते हैं तो मतलब ना जाने पता नहीं कौन सी पोस्ट पर आप पहुंच जाएंगे. तो वो एक फैसिनेशन था मुझे. तो क्या आप व्यूअर्स को ये गाइड करना चाहेंगे कि since you are also CS plus LLB, CS plus legal field you are in, तो कितना advantageous है and क्या इसमें career scope है? Please. And I would agree to what you said. CS and law is a wonderful combination for somebody who wants to do this. If you, Abhi, first I'll tell you individually how it is and how there's a change when you combine both of these. For students के लिए will be easy to understand. आप law कर रहे हो, so you have different options in the career. आप you can practice as an advocate, lawyer, or you can rather join a firm as a legal counsel. And आपका सब कुछ it's more based on the corporate governance to see different compliances. And then there is CS. So CS आपका majorly focuses on your company law. Company law अपने आप में there's a law which guides the company. So आप LLB करके you will not have that qualification to comply with all the company law. And as a career, if I say now, suppose there's an MNC, तो आपके पास CS है तो उनका जो एक रिक्वायरमेंट है फॉर अ कंपनी सेक्रेटरी, देयर इज अ थ्रेशोल्ड लिमिट. इफ यू क्रॉस दैट तो इट्स मैंडेटरी कि CS अपॉइंट हो. अगर आप उसमें क्वालिफाई होते हो एज अ CS प्लस आपके पास LLB है, सो फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू यू ब्रिंगिंग 2 degrees ऑन द टेबल, यू ब्रिंगिंग 2 different areas of knowledge for them. And as an individual आप contributing फैक्टर आपका ज्यादा है, तो दैट इज वाई आपका रोल ज्यादा है, दैट इज वाई आपकी वैल्यू ज्यादा है. सो इट इज लिंक्ड टू ऑल ऑफ दैट. अगर इफ यू थिंक कि आप CS ही करोगे, दैट इज ऑल्सो रियली गुड इफ यू आर वर्किंग इन अ लिस्टेड कंपनी. सो लिस्टेड कंपनी में CS का अपना इतना ज्यादा रिक्वायरमेंट है कि शायद आप लॉ वाला काम हैंडल भी ना कर पाओ, क्योंकि यू ऑलरेडी हैव सो मच टू डू.
बट इफ यू अब लिस्टेड कंपनीज इंडिया में अगर हम स्टूडेंट साइज देखें एंड यू नो नॉट एवरी चाइल्ड विल फिट इनटू एवरी लिस्टेड कंपनी, बट देयर आर मेनी MNCs, मेनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज एंड दे वांट समबडी जो उनका पूरा लीगल संभाल ले. सो दैट पर्सन शुड नो कंपनी लॉ, दैट पर्सन शुड हैव LLB डिग्री. उनके लिए इट्स अ मार्वेलस कॉम्बिनेशन एंड आई वुड रियली रेकमेंड कि आप CS और LLB दोनों, अगर आपने CS कर लिया है तो LLB आपको बहुत इजी लगेगा एंड वाइसा वर्सा LLB किया है तो CS भी आपको बहुत इजी है. तो एक तरह से आप अपनी नॉलेज से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, यू जस्ट थोड़ा सा थोड़ा सा वाटर को थोड़ा सा और भर के आपके पास दोनों क्वालिफिकेशंस आ जाएगी. And in fact, our viewers are, as I mentioned, they are diverse, and people are gearing up for CLAT these days. तो Right. कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के एडमिशन के लिए होता है, एंड इसमें जो एक बहुत मेजर क्रेज जो मैं देख रहा हूँ बच्चों के आगे, वो ये है कि बच्चे कॉर्पोरेट सेक्टर को बहुत ज्यादा प्रेस करते हैं. सो मे बी आई एम नॉट श्योर व्हाट इज द बैकग्राउंड दे आर हैविंग, मे बी अ सोशल मीडिया, और ऑफन टाइम्स आई हैव हर्ड देयर इज अ वेब सीरीज कॉल्ड सूट्स. सो जो बच्चों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करती है लॉ फील्ड में आने के लिए, स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट सेक्टर में आने के लिए. एंड उसमें भी जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि कॉर्पोरेट सेक्टर ज्यादा वेल पेड सेक्टर, मतलब आप एकदम बहुत ही लैविश और बहुत अच्छे हाईली पेड जॉब्स में रहते हैं. तो कितना सच है और क्या डिफिकल्टी लेवल है, हाउ मेनी लैडर्स दे नीड टू क्लाइंब बिफोर रीचिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ दैट सो कॉल्ड हाई पेड जॉब्स? Right. So now I would say this is very subjective also. जैसे for you high paid would be something else, for me high paid would be Correct. something else. हर एक और बच्चे के लिए तो बहुत अलग रहता है. For Correct. every child high paid means something else. Correct. But it also depends. It is well paid, very well paid, and पर उस तक पहुंचने के लिए you have to understand. You'll take few years to understand how it works. अब like in any other industry, I would say LLB and CS is not what you read. It is not what you read. आप पढ़ते हो but more जब आप कंपनी में जाते हो तो आपके पास एक सिचुएशन आती है and then you have to use your mind कि which laws are applicable, Correct. under which law what you have to do, what is not right to do. So all of things come with experience. Right. And when that experience builds up, when you're able to tell कि this is right, this should not be done, so that is what you're paid for. You're not paid for the degree, you're paid for how you interpret the laws, Right. how you ensure कि company के compliances full proof है, how you ensure that everything in the organization is going ethically right. So आपका role बहुत broad है, and as after probably I think initially you cannot expect कि आपको, if you see packages in IT sector and लोगों को लगता है कि हाँ एकदम से इतना पैकेज लग गया. LLB is more about experience and the number of years. Corporate sector, yes, it is well paid, so is practicing sector. अब उसमें भी there's more of hard work, there's more of somebody who can give more of their time. उनके लिए practicing बहुत अच्छा है and Correct. people like it. जैसे सबका nature होता है, if you really like to work and you want to understand, तो practicing में भी there's a lot of money for you. ट्रू ट्रू. अब इसमें एक और चीज मुझे जो हिट करती है वो ये है कि जैसे मैंने बताया कि बच्चे अभी क्लैट के लिए प्रिपेयर करें. द नेक्स्ट एग्जाम ऑफ क्लैट विल बी इन December, एंड नाउ all over viewers have started preparing for CLAT examination. Right. So I will ask two things here. Right. Since आपको एक experience है competitive exam देने का, and as you mentioned just few seconds before that, कितना tough था एक exam time को deal करना, like you cannot afford to miss the classes, right? So what lesson would you like to give to viewers जब बच्चे CLAT की तैयारी कर रहे हैं तो उनका attitude कैसा होना चाहिए कि कैसे वो prepare करें? Right. Like they might be having 12th, some might not have, but what should be the in general attitude? This is my first question. Correct. The first, I think जो सबसे important है, it is knowing the topic. It's not कि आपने notes बना लिए कि आपके you have 100 page के notes. Correct. So that does not make sense until you understand कि उस notes में है क्या. Now most of the times if we read a line आपको समझ जाती है कि this is the line. But now competitive questions are more of analytical.
दे ऑल्सो गिव यू सिचुएशंस कि हाँ ऐसा होगा देन व्हाट विल यू डू. Correct. सो आपको ये तो पता है कि ऐसा ऐसा है बट यू डोंट नो कि हाउ व्हाट यू हैव टू डू. सो अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जब आप कॉन्सेप्ट समझोगे इट विल बी मोर इजियर फॉर यू टू जस्ट आप अपनी लैंग्वेज में लिखो. ऐसा नहीं है कि व्हाट अगर आपने एक नोट्स दिया आप उसको कॉपी पेस्ट कर दो. इवन इफ यू, दिस इज माई एक्सपीरियंस, इवन इफ यू राइट इन योर लैंग्वेज एंड इफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. So that is the first thing I would say. Second, I would say always go through mock test, mock Correct. papers, because no matter what, जब आप start करोगे you will realize that you don't know. आपको mock test ही clear नहीं हो रहा है. So Correct. that will be like a setback for you. And then आपको hit होगा कि नहीं, I need to do more of these. एंड व्हेन यू आर मेंशनिंग मॉक टेस्ट, एक और मुझे इसमें एरर याद आ गया जो बच्चे यूजुअली कर रहे हैं. तो वो ये करते हैं कि मॉक टेस्ट को आई डोंट नो व्हाई दे कीप इट फॉर लास्ट. सो जब एग्जाम से 1 महीना 2 महीना बचा है तब वो मॉक सेट्स जो है चालू करते हैं बनाना एंड दे स्टार्ट गेटिंग पैनिकिंग कि यार हमसे टेस्ट नहीं बन रहा है. सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट शुड बी द आइडियल टाइम? अगर आप मानिए कि आज से बच्चों के पास जस्ट 8 months दे हैव टू प्रिपेयर फॉर क्लैट. सो what is the right time to start preparation and start giving mock test also? Right, and I'm not surprised क्योंकि somehow even we ended up doing that and तब आपको लगता है कि नहीं last time ये गलती हुई थी फिर next time आप जल्दी करते हो. I would feel that at least 4 months पहले you start, minimum 4 months I'm saying. कि आपको 15-20 days you will be at a surprise. आप शॉक कि आपसे हो नहीं रहा. जब नहीं होगा then you will study more, so at least 2 months you understand the pattern, you understand कौन से सब्जेक्ट से कितना परसेंटेज आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं. एंड द बेस्ट इज मैप दोज. आप 5 साल के पेपर लो, एरिया वाइज आप नंबर्स दो कि किस टॉपिक से कितना परसेंटेज हर साल आ रहा है. Correct. और आपको एक पैटर्न धीरे धीरे यू विल गेट दैट पैटर्न. एंड 2 months जस्ट प्रिपेयर, फोकस ऑन, मतलब लास्ट मंथ में आपको ऐसा होना चाहिए कि यू आर एबल टू आंसर एनी ऑफ द मॉक टेस्ट. और अगर आप इतना कर लोगे देन आई थिंक इट्स विल बी वेरी फ्रूटफुल. 4 months तो आप लिख के ले लो कि हाँ एटलीस्ट मुझे शुरू करना है, ढूंढना है कि मॉक टेस्ट है कहाँ. ट्रू. नाउ वन थिंग मोर, जब हम प्रिपेयर कर रहे थे और आज जब हमारे व्यूअर्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इन द टर्म्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. सो आई गेस कि व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग हमारे टाइम सोशल मीडिया का क्रेज उतना नहीं था. आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, in fact when you were also be in your class 10th or 11th, we did not have the gravity of that smartphones and social medias and this new Gen Z FOMO terms. So how students should deal with this? Oftentimes they are in the comparison mode कि ये कर रहा है, वो ये कर रहा है. So how would you like to advise them? Correct. On social media एक चीज ये है कि students are learning also from social media. मतलब अपने concepts reels पे ही clear कर रहे हैं, which I think could be right, but आप कौन सी reel देख रहे हो ये important भी है. एक ही subject का I've seen one single section being interpreted differently through different reels. तो उस चीज में फिर then your text comes into place. कि टेक्स्ट क्या है, व्हाट इज एज अ टीचर हु इज टीचिंग यू उसका क्या इनपुट है. ऑन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन आई वुड से जो मैंने पर्सनली किया था, ऑल दोस टाइम डिस्ट्रैक्शंस कम थे बट आई थिंक एवरी फोन एंड्रॉयड और एप्पल यू हैव द स्क्रीन टाइम एंड स्क्रीन सेवर. सो फॉर एवरी ऐप आप एक टाइमर लगा दो, 1 hour if you want or 30 minutes, and then they'll send you the notifications. तो आपको हर रोज कोई ऐसे मतलब इट्स लाइक नॉट योर पेरेंट नजिंग यू बट आपका फोन खुद ही बोल रहा है, तो आपको लगेगा कि हाँ यार इसमें मेरे आधा घंटे से मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, नाउ इट्स द टाइम. सो इट इज वेरी प्रैक्टिकल और ये काम करता है अंटिल कि आपको सब कुछ इग्नोर करना है. बट अगर आप वो डालोगे इट इज हेल्पफुल बिकॉज यू नो कि हाँ ठीक है इतना टाइम हो गया है आज का, नाउ आई शुड फोकस. सेकेंड आई वुड से ऑन द डिस्ट्रैक्शंस इज whenever you open any, I mean Instagram, if I say nowadays Instagram or Snapchat and the fact of comparing कि आप अपने peers को compare कर रहे हो, but you make sure कि those apps that you're using how much, I mean आप practically सोचो कि वो आपको क्या contribute करके दे रहा है in terms of exams. आप अपना utilization उस app को अपने exams के लिए करो. Follow pages
फॉलो चैनल्स जो इसको कर रहे हैं Exactly. एंड सब्सक्राइब टू डिफरेंट लॉ अपडेट चैनल्स. सो एटलीस्ट आपकी फीड में अगर 10 चीजें इरेलीवेंट है तो उसमें से 5 आपके नॉलेज की भी है. Correct. So that is not exactly ignoring, but some helping. The media is somehow helping you. Right. And third is of course discipline. आपको self discipline तो चाहिए ही है. अगर आप discipline नहीं हो तो corporate में भी I'll tell वो same behavior trickle down होगा and then you'll end up always overloaded with work क्योंकि आपका habits तो वही रहेंगे. So I think this is something which anybody can do easily if Right. they want to do. And I think screen time is a really good option which you suggested, and you'll be surprised to know, and maybe not. So just few days before, I was interacting with a bunch of students, and मैंने उन्हें बोला कि let's have a test, and it's called as a screen time test. Okay. So it was an evening time, Okay. और मैंने बच्चों से randomly बोला कि आप मुझे अपनी screen time दिखाइए, and we were on a Google Meet call, Okay. and people showed their screen time. And to my utter surprise, एक बच्चे का Instagram was 9.5 hours. My God. So I think in this time when students That's are too using much. Instagram for like 6 hours, 7 hours straight, screen time is a very good option, and it's a request to all of you कि very nice suggestion ma'am has given that आप screen time लगाइए. आप पढ़ाई YouTube से करते हैं ज़्यादा, Instagram से नहीं, but still अगर आप Instagram से भी पढ़ना चाहते हैं तो there are bunch of channels, जैसे मैम ने बताया law updates वाले चैनल हैं या जो चैनल्स आपको क्लैट में हेल्प कर रहे हैं, हमारा खुद का चैनल है Instagram में, तो ये सारे चैनल्स probably will help you, and बाकी सबको बंद कर दीजिए थोड़े टाइम के लिए. Right. सो कमिंग टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन मैम की स्किल्स आज बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो गई हैं, स्पेसिफिकली विद द इमर्जेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देयर इज अ थ्रेट दैट अगर हम स्किल्ड नहीं हैं तो देयर विल बी अ लेस वैल्यू ऑफ आवर सेल्फ डिस्पाइट हैविंग डिग्रीज. सो आज के टाइम पे मुझे लगता है कि बच्चे शायद उसी ओल्ड जनरेशन थॉट में फंसे हैं कि अगर मेरे पास XYZ डिग्री होगी तो मुझे XYZ पोजीशन मिल जाएगी. सो हाउ मच ट्रू इट इज, और बच्चों को क्या स्किल्स मैंडेटरीली डेवलप करनी चाहिए? इट इज ट्रू. अगर हम AI ना, AI इज ऑल इट्स लाइक सिटिंग इन आवर लैब्स. तो अगर हम अभी भी एक्नॉलेज नहीं करेंगे Correct. कि AI कैन प्रोवाइड इनपुट्स, तो फिर आई थिंक इट विल बी वेरी इग्नोरेंट ऑफ अस कि जानते हुए भी आप कोई चीज इग्नोर कर रहे हो. नाउ फॉर एग्जाम्पल आपने लॉ, आपका लॉ है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी क्लियर कर रहे हो एंड आपको कोई क्वेरी है, सो AI कैन ऑल्सो गिव यू एन आंसर Correct. टू दैट क्वेरी. उसमें कोई सरप्राइजिंग फैक्ट नहीं है. वही चीज आप भी, आई फील क्लियर, आप भी ऑर्गेनाइजेशन में या आप भी वही कॉपी पेस्ट कर दो तो आप दोनों में लिटरली कोई डिफरेंस नहीं होगा until the skills that you said. True. Now skills, आपका जो सबसे important skills I think for law is interpretation. True. Interpretation is essential for a law candidate कि an interpretation ये नहीं from one angle. अगर आप पढ़ रहे हो you have to see कि somebody who wants to do this, उसके लिए क्या इंटरप्रिटेशन होगी, और दूसरा साइड भी सोचना है ये जिसको नहीं करना उसके लिए क्या इंटरप्रिटेशन है. सो वंस यू हैव दैट नॉलेज कि हाँ इसको कैसे इंटरप्रेट करें, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ there are two sides to the coin, और वो आपको ही समझना है, एंड दैट कम्स विद रीडिंग एंड एक्सपीरियंस. और केस लॉज पढ़ो, आपके यू हैव दीज लाइव लॉ अपडेट्स, गो Correct, थ्रू correct. केसेस, बहुत लेंदी लगेगा बट गो थ्रू इट कि जज किस वे में, हाउ डू दे सी फैक्ट्स. Correct. उनके पास भी नॉलेज है पर वो दे लिसन टू यू, वो सुनते हैं फिर वो समझते हैं, दे इंटरप्रेट इट. सो वन थिंग इज दैट इंटरप्रिटेशन. सेकेंड स्किल में आई वुड से पेशेंस. पेशेंस बहुत अंडररेटेड एक स्किल लगती है, बट पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जब व्हेन एनीथिंग, व्हेन देयर इज अ लीगल इशू, सो व्हाट डू यू डू, आप स्पीड पे ध्यान देते हो कि हाँ मैं फटाफट, हाँ ये प्रॉब्लम है, इसका मैंने उस सेक्शन में पढ़ा था तो ये आंसर है, और आप दे देते हो. या यू टेक टाइम, यू सिट डाउन, आप देखते हो प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, कौन अफेक्टेड पार्टीज है, यू नो व्हाट इज द सोल्यूशन, आउटकम, सोल्यूशन के बाद क्या होगा. सो वो एक पेशेंस, एक आई थिंक लॉ कैंडिडेट में होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू बी पेशेंट टू अंडरस्टैंड एंड सिट एंड एनालाइज द सिचुएशन. So I would say your patience comes second, and third I would say also being ethical.
क्योंकि आप लॉ अल्टीमेटली यू आर इन द लीगल डोमेन. एथिकल नाउ अगर आप कॉर्पोरेट में हो तो बहुत डिफरेंट है. मतलब आपके इफ समथिंग इज गोइंग थ्रू अंडर योर नोज तो आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि देन व्हाट इज योर रोल, यू हैव टू स्टेप अप एंड से कि हाँ ये मुझे लॉ के हिसाब से गलत लग रहा है. अगर आप प्रैक्टिसिंग में हो देन आप कितने अच्छे प्रोफेशनल हो डिपेंड्स अपॉन हाउ मच ऑफ genuine advice you give. Instead of giving advice for just commercial gain, आप genuinely कितना advice कर रहे हो. And litigation then of course is different. For that I wouldn't say much because it is different for different people in terms of that. Correct. So I think patience is one of that skill जो हर बच्चे में होनी चाहिए. I believe that not just about the professional arena. Correct. जबकि आपको ये competitive exam के preparation में भी बहुत काम आएगी. Since we're discussing about mock test, तो मुझे याद है कि बच्चे पैनिक कर जाते हैं and they start losing hopes because they don't have patience. So patience is a real asset. I would like to inform you all. ठीक है. So we'll move to the next question that often time like एक thought process था. I remember हमारे टाइम में जब बोला जाता था कि क्लास 10th के बाद जो है आप सिर्फ साइंस ले रहे हो या आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हो तब तो आप एक ब्राइट स्टूडेंट हो, और अगर आपने आर्ट्स ले लिया या कॉमर्स ले लिया तो आप कहीं के नहीं हो. बट आई सी दैट थिंग यू नो गेटिंग चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो क्या वो बच्चे जो साइंस कर रहे हैं, क्या वो अगर ह्यूमैनिटीज हैं, कॉमर्स हैं, तो इफ दे आर कमिंग टू लॉ तो क्या उनके लिए कोई डिफिकल्टी होगी और हाउ विल दे मैनेज? आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज अब बच्चे भी समझ रहे हैं कि हाँ उनको नहीं कोर्स करने के बाद नाउ दे रियलाइजिंग कि दे डोंट वांट टू डू. डिफिकल्टी आई वुड से डिफिकल्टी for CS I would say you can start from the scratch also. Correct. क्योंकि it's as new for anybody as it is for and likewise law. Likewise law, once you go into the domain you'll see कुछ भी टेक्निकल वैसा टेक्निकल नहीं है जैसे शायद डिफरेंट प्रोफेशंस में होता है. यू डोंट हैव टू मेक कैलकुलेशंस. आपको ऑलरेडी सेट कुछ आपको फॉर्मूलेज नहीं पता होने चाहिए. इट इज मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रियल लाइफ सिचुएशंस. और रियल लाइफ से तो हम सभी एक्सपोज्ड है. वी सी डिफरेंट अगर हम वी सी क्राइम सीरीज, वी वॉच थ्रिलर मूवीज, वी सी व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी. तो लॉ इज एग्जैक्टली मैकेनिज्म टू हाउ टू डील विद ऑल सच सिचुएशंस. तो अगर आपको थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन है इट विल बी इजी फॉर यू. यू जस्ट हैव टू पुट इन टाइम टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स जो किसी को शायद पहले से पता हो अगर उसने कॉमर्स लिया है. बट कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है. क्योंकि कॉमर्स में भी आपको दे टीच यू 12 डिफरेंट थिंग्स, बट अल्टीमेटली लॉ में वो सारी चीजें तो नहीं होती. सो एंड इफ आई सी लॉ एंड CS एक्चुअली समथिंग विच एनीबडी कैन पिक अप provided your age and everything is in sync with the requirement. पर उसके अलावा it's a good field for you to start from the scratch. Correct. And I think law has become a need over a period of time because last कुछ महीनों में और सालों में हमने you know social mishap होते हुए देखा है इंडिया में. And specifically if I mention like the brutal Kolkata rape and murder case, and recently we saw the Meerut murder case, and like this many things are happening, and there is a new cyber attack, digital arrest. So all of these things are mind boggling to you know maybe new crowd. And now if in all of you might be seeing that जब आप कॉल लगा रहे हैं तो आपको एक रिकॉर्डेड मैसेज शो होता है कि अगर कहीं से कॉल आ रहा है तो वो साइबर अपराधी हो सकते हैं. तो कहीं ना कहीं हमें लॉ समझने की बहुत नीड है आज के टाइम पे बिकॉज पीपल ऑफन गेट स्टक कि अगर मे बी उन्हें FIR करना है तो दे डोंट नो कि वो क्या करें. या स्पेसिफिकली विद द गर्ल्स दैट इन एनी केस ऑफ हैरासमेंट दे फेस, दे फर्स्ट ऑफ ऑल गेट फियर्ड रादर देन गेटिंग यू नो एक्शन ओरिएंटेड. तो वो मुझे लगता है कि लॉ बच्चों को थोड़ा सा ओरिएंट करता है. सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या ये सच है कि अगर बच्चे लॉ करेंगे तो उन्हें इसमें एक एक्शन ओरिएंटेड थॉट आएगा? Absolutely such, because you're closer to reality.
तो डिग्री के साथ आप इतने क्लोज हो कि आप जो पढ़ रहे हो वही आप धीरे धीरे रिलेट कर पाते हो कि हाँ ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ, दिस इज हाउ इट इज हैपनिंग. एंड चाहे आप लॉ कर रहे हो, फॉर योर फैमिली इट इज बेनिफिशियल. लाइक हम बोलते थे फैमिली में डॉक्टर हो तो अच्छा है, इंजीनियर हो तो अच्छा है. तो फैमिली में कोई लॉ से हो, इट इज मोर बेनिफिशियल इन टूडेज डेज. अब स्कैम्स, लाइक यू सेड, इतने स्कैम्स है. प्लस नॉट इवन स्कैम्स एज अ राइट, आपके घर पे लाइक यू सेड कुछ हो जाए या यू नो सम मिसहैप हैपेंस विद अ वुमन, तो हम इतने, आई वुड से हम इतने इग्नोरेंट है, हमें पता ही नहीं कि यार इतना बड़ा लॉ है, इतने पुलिस स्टेशंस है, हमें नहीं पता क्या करना है. People just want to hide matters. पीपल वॉन्ट टू हाइड मैटर्स विच इज, क्योंकि आपको लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. आपको लगता है पता नहीं कि कोर्ट में जाएंगे तो क्या हो जाए, एक वो डर है फ्रॉम कोर्ट, फ्रॉम ऑल ऑफ दिस सिस्टम. आपको एक वो अलग दुनिया लगती है. but it is not that different. It is more of your everyday issues being heard, being judged. And इसमें भी वही है कि आप लॉ को कैसे पढ़ोगे. आप सोसाइटी के लिए पढ़ोगे, अपने लिए पढ़ोगे, या यू जस्ट वांट कि एक LLB का स्टिकर लग जाए गाड़ी पे और उसके लिए अगर आप कर रहे हो लॉ, देन आई थिंक वो तो फिर वी कैन नॉट कॉमेंट. बट ओवरऑल एज अ लॉ, एज अ डिग्री इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी, फॉर द फैमिली ऑल्सो, आई वुड से. करेक्ट. तो जैसे कि पहले सपना होता था कि घर में एक बच्चा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अब वो सपना लॉयर में बदलना चाहिए. सो नेक्स्ट, आप कोई अपने प्रोफेशनल जर्नी या स्पेसिफिकली लॉ जर्नी से कुछ इनसाइट्स बच्चों को देना चाहेंगे? राइट. सो इट्स, आई वुड से इट्स अ वेरी लर्निंग phase for me when after I did all my degrees. So corporate में आके लॉ में एक और फायदा है कि once you're in legal, आप corporate में legal में आते हो, क्योंकि आपका प्रोफाइल ऐसा है, you will have an insight into every रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन. मार्केटिंग में क्या है वो आपको पता चलेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स लाइक बेस लेवल कॉन्ट्रैक्ट्स, थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स यू विल अंडरस्टैंड द बिजनेस. सो फॉर एग्जांपल व्हेन आई जॉइंड एज अ CS, माय फर्स्ट जॉब, मुझे नहीं पता था कि कंपनी में कैसी चीजें चलती है, प्रोडक्शन टीम क्या कर रही है, आपका सेल्स क्या कर रही है. फॉर अ न्यूबी इट इज वेरी डिफरेंट, आपके लिए बहुत डिफरेंट होता है. बट वंस यू आर इन लीगल, सो हर एक डिपार्टमेंट की क्वेरी भी आपसे, आपके थ्रू रूट होगी. यू विल हैव कॉन्ट्रैक्ट्स रनिंग थ्रू यू, यू हैव टू मेक, एज अ CS आपको डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होते हैं, आपको बोर्ड मीटिंग मिनट्स रखने होते हैं, तो आपको कंपनी का पता चल जाता है. So as a base, it is very beneficial that you understand the company altogether. अगर हम किसी और डिपार्टमेंट की बात करें तो आपको पता होगा, पर आपको इतना नहीं पता होगा कि हाँ कंपनी में क्या चल रहा है हर एक चीज. बट सिंस योर रोल इज सो, आई वुड से सो नीश इन टर्म्स ऑफ कि आप कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो आपको पता है कि कंपनी कैसे चल रही है. सो दैट वाज अ वेरी लर्निंग पॉइंट फॉर मी. सेकेंडली, जो एक बच्चों का वो रहता है कि CS करेंगे तो सीधे हम मतलब सीधे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम ही हैं. सो आई वुड नॉट से इट इज रॉन्ग, इट इज राइट, क्योंकि आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है दैट इज लिंक्ड टू टेलिंग द बोर्ड कि क्या सही है. अब कंपनी लॉ आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि ये चीजें होनी है. अब सबको नहीं पता होगा, क्योंकि ऑब्वियसली सबने कंपनी लॉ नहीं पढ़ा है. तो उस सेंस में जितना आप कंट्रीब्यूट करोगे, यू विल बी मोर क्लोजर टू दैट पोजीशन. मैं ये नहीं बोलूंगी कि CS बन गए तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आगे नहीं, बट यू स्टिल अ की मैनेजरियल पर्सन जो कि मैंडेटेड बाय लॉ है. तो आप एक KMP तो हो, और वो KMP इसलिए हो क्योंकि आपका रोल बहुत क्रिटिकल है. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतनी ही है. सो इफ समथिंग गोज रॉन्ग, कोई मतलब इफ देयर इज अ स्कैम और देयर इज एनी नॉन कंप्लायंस, तो यू विल बी अकाउंटेबल फॉर इट, क्योंकि आपका रोल है. बट उसके साथ के फिर वो पर्क्स भी है. सो आई थिंक दिस इज समथिंग विच आई लर्नड आफ्टर बीइंग इन द प्रोफेशनल जर्नी. एंड ऑल्सो आई वुड से इनिशियली मैं बहुत, आई वॉज नॉट ओपन टू कॉन्वर्सेशंस, आई वॉज वेरी शाय. बट आई वुड से कि आप जितने लोगों से बातें कर सको करो. सो नेटवर्किंग, वी से नेटवर्किंग, आजकल वी से नेटवर्किंग इज द की इन एवरीथिंग. सो इट्स नॉट कि आप जस्ट डोंट थिंक इट ऑफ नेटवर्किंग, बट बिल्ड कनेक्शंस नेचुरली. आपको कुछ जानना है, यू वॉक अप टू समबडी, आप उनसे 5-10 मिनट बात करो, समझो वो क्या कर रहे हैं, बट बी ओपन टू इट. कुछ लोगों के लिए इजी होगा, कुछ लोगों को एफर्ट्स करने पड़ेंगे. दे विल हैव टू
you know, push themselves ki हाँ कि go and talk to them, but do that. It will be very helpful for you, and you'll always learn new things. हमेशा मतलब there is anybody, कोई भी है आपके ऑफिस में, आप सबसे कुछ ना कुछ सीखोगे. So don't just go to office and come back. Make sure कि आप, या अभी स्टूडेंट्स के लिए ऐसा, अगर आप कोचिंग में भी हो तो आप अपने पियर्स के साथ बैठो, उनसे समझो, अपने अपना स्टडी कर लोगे ठीक है, बट अंडरस्टैंड देम एंड यू लर्न समथिंग जो आपको नहीं पता होगा. ट्रू. एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी ग्रेट पॉइंट्स जो मुझे लगा बच्चों के लिए इनफैक्ट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा, बिकॉज आई रियलाइज ऑफन टाइम दैट बच्चे नहीं बात करते एंड फॉरगेट अबाउट पीयर्स, दे डोंट इवन कम टू अस. तो एज अ मेंटर मैं हमेशा फील करता हूँ कि बच्चों के अंदर वो कंफर्ट जोन होना चाहिए कि बच्चे पूछ सकें. तो नाउ द बिगेस्ट चैलेंज विच एटलीस्ट आई सीन देम कि अगर क्लास हो रही है और क्लास में अगर 25, 30, 50 बच्चे हैं तो दे विल फील शाई कि अगर मैंने डाउट पूछा तो क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में. तो हाउ वुड यू लाइक टू एड्रेस दिस इशू अमंग्स चिल्ड्रन की, मतलब व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम कि लोग क्या सोचेंगे या उनका डाउट क्लियर होगा कि नहीं. और इसमें फ्रॉम माई एक्सपीरियंस ओनली आई विल टेल यू कि लोग क्या सोचेंगे, अगर आप सोच रहे हो तो 99% लोग कुछ नहीं सोचेंगे क्योंकि उनको भी नहीं पता. आपके मन में जो क्वेरी होगी वो सोचो इफ 10 अदर स्टूडेंट्स हैव द सेम क्वेरी और आप वो क्वेरी पूछ लोगे तो आप अपना तो भला कर ही रहे हो पर आप 10 और लोगों का भला कर रहे हो. सो जो हमारा माइंड है ना कि लोग क्या सोचेंगे, सिर्फ हम ही सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, कोई कुछ नहीं सोचता. और ये मुझे अब पता चला है. लोग सोचेंगे 2 सेकंड सोचेंगे उसके बाद भूल जाएंगे. लोग अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए, मतलब ये सो बिजी टुडे कि वी डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट थिंग्स. और क्लास में अगर आप पूछोगे एंड देयर समबडी हु इज मेकिंग फन, प्रोबेबली कोई है जिससे आपको लगता है या आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन वैलिड नहीं है. सो इसमें आई थिंक टीचर्स का भी रोल है कि हर एक क्वेश्चन को उतनी ही इम्पोर्टेंस दी जाए. लाइक अगर मैंने आपको एक चीज समझा दी और बाई चांस किसी को उसी पे क्वेरी है तो हाँ, समझाने के बाद आप फिर से समझा सकते हो कि हाँ दिस इज, ताकि बच्चे को भी ये ना लगे कि हाँ व्हाट इज इट. एंड वही इट्स ऑल इन आवर हेड, बहुत लोग बोलते हैं पर लिटरली बाकी लोगों को भी नहीं पता होता है. मैंने यही नोटिस किया है अभी तक. हमें लगता है कि वो मुझे नहीं पता है ना बाकी सबको पता है, बट मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है. सो इट्स गुड टू जस्ट आस्क. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दे विल थिंक कि हाँ नहीं पता है. हाँ तो नहीं पता है तो जो रियलिटी है वो है ना, नहीं पता है. एंड ऑफिस में भी अगर आपको नहीं पता है यू हैव टू बी वेरी ओपन विद इट. आप अगर आपको नहीं पता और आप चीजें कर रहे हो तो सोचो उससे क्या हो सकता है. सो इट्स बेटर आप बता दो नहीं पता है एंड देन अंडरस्टैंड. जो नहीं पता है उसको पता करो एंड देन डू इट. करेक्ट. तो आई थिंक स्टूडेंट्स दिस इज अ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर यू. ऑल्सो मैम आपने जस्ट थोड़ी देर पहले मेंशन किया ग्रुप स्टडी का, लाइक यू नो दे शुड कम्युनिकेट, टॉक टू पीपल. एंड फैक्ट CLAT is an examination जहाँ पे group study चाहिए. Correct. Reason being that when we talk about other examination, that even you take chartered accountants or company secretary or in fact judiciary, the course is limited. As in you have been given a book of constitution, book right. of other statutory laws and said that आपका इसी पेजेस से क्वेश्चन आने वाला है. But when it comes to CLAT or specifically MHSET or Symbiosis or any other law entrance exam, right. they have an open syllabus. As in that they will say that we'll be asking from this area, but okay. from what area they will ask, it's no clue. Okay. Specifically current affairs. So right. current affairs, you know, whole bunch of news is flooding these days. Okay. So I believe that like someone have interest in economics, so someone will have in international affairs, someone will have in finance, banking or sports. So I believe that students should communicate more and more, because let's say if you are interested in economics and I'm in politics, so we can both benefit each other. Correct. And this is the very good point which ma'am has shared with all of us, that आप लोगों को group study करना चाहिए. Please do communicate. और हमने तो मैम प्लेटफॉर्म ही ऐसा बनाया है. So okay. I would like to introduce our Adda 24/7 community. Okay. So we have made this community जहाँ पर बच्चे आकर एक live doubt सेशन टाइप की होती है जहाँ पर आप पूछ सकते हैं. इट्स सो हैंडी, जस्ट आपको ऐप ओपन करना है. यू माइट हैव सीन कोरा रेडिट. सो वी हैव मेड अ कम्युनिटी लाइक दैट इन आवर ओन एप्लीकेशन. सो आप सभी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए एंड जस्ट गो टू द कम्युनिटी फोरम एंड इनफैक्ट दे कैन कनेक्ट विद अस. सो अस एज अ मेंटर्स डायरेक्टली दे कैन रीच आउट टू अस आस्किंग देयर डाउट्स. बट द सैड पार्ट इज पीपल डोंट फील फ्री, क्योंकि
क्योंकि एक ओपन कम्युनिटी है, सो मे बी अगेन दैट वो थॉट विल judgment कम वाला। कि यार क्या सोचेंगे, मैंने क्या पूछ लिया, सच एन इजी क्वेश्चन. So when so happened that one person gave a wrong answer of the question that who was the first president of India, and he got bewildered कि अब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैंने गलत जवाब दे दिया, and he was the only person to give wrong answer. So what should students have, because they are doing blunder, so how should they take it, मतलब क्योंकि वो फिर एकदम से नेगेटिविटी में चले जाते हैं, तो what advice would you like to give them? आई थिंक वही लाइक द एग्जाम्पल दैट यू गेव, अगर हम अपने साथ इफ वी सी, तो पहला एम्बेरसमेंट आपको होता है, यू फील एम्बेरस्ड कि हाँ यार मैंने गलत दे दिया, मुझे नहीं पता था. एंड वो एक आपको अगेन कमिंग टू द फैक्ट कि जो एम्बेरसमेंट है वो आपको है बिकॉज यू फील दैट यू रॉन्ग, बट यू नॉट रॉन्ग, आप गलत नहीं हो, यू आर जस्ट नॉट अवेयर. Correct. अब आपको ये नहीं पता कि पहला प्रेसिडेंट नहीं था, तो ठीक है, किसी को ये नहीं पता होगा कि आप जो आपको पता है. Correct. सो आई वुड ऑलवेज से कि कुछ गलत नहीं है, मुझे बहुत कुछ नहीं पता. इफ आई से आई डोंट नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, तो मैं गलत थोड़ी ना हूँ. आई एम नॉट रॉन्ग, आई जस्ट डोंट नो. और आप इतनी चीजें दुनिया में आपको कैसे पता होगी. सो इट इज ऐसा ही सोचो दैट ठीक है मुझे नहीं पता था, बट आई वाज नॉट रॉन्ग, आई जस्ट डिड नॉट नो. और इसमें बाकी लोगों के लिए भी है कि सपोज कल के दिन किसी ने गलत आंसर दिया तो आप उसको बोल रहे हो रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग. अब कल के दिन आपने दिया तो एज अ कम्युनिटी आप लोग सब इतने क्लैट करोगे, CS करोगे, आप कम्युनिटी में जाओगे, तो आप वहां बैठ के ऐसे तो नहीं करोगे तूने क्यों किया. यू विल नॉट डू दैट. सो एज एन इंडिविजुअल हाउ आर यू हैंडलिंग दैट सिचुएशन. अभी से आप एग्जाम्स क्लियर करके अगर आपको लीडरशिप पोजीशंस पे जाना है तो आप क्या करोगे. यू हैव टू से कि इट इज नॉट, इट्स ओके, मतलब ये नहीं था ये था, एंड जस्ट एंड इट. एज अ स्पेक्टेटर या एज somebody around somebody who's done wrong, you end it there. उसको आप प्रोलॉन्ग मत करो, उसकी बातें मत बनाओ, उसको ग्रुप में मत डालो. हाँ, गॉसिप्स मत करो, उससे क्या मिल रहा है. इट जस्ट शोज आपका खुद का पर्सनैलिटी वीक हो रहा है. वुड से एज एन इंडिविजुअल आप यू नॉट बिकमिंग बेटर, आप वर्स बन रहे हो अगर आप इस चीज को और प्रमोट करो. इफ समथिंग हैपेंस, पुट एन एंड टू इट एंड मूव ऑन. एंड जिसने गलत किया वो भी पुट एन एंड, जैसे मुझे ये नहीं पता, बस ठीक है, आई एम नॉट रॉन्ग, आई जस्ट डोंट नो. आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बिल्कुल भी आप लोगों को नेगेटिव नहीं होना है, और इनफैक्ट ये हर फेज में अप्लाई करेगा. चाहे मॉक टेस्ट दे के आपने रियलाइज किया कि आपके मार्क्स नहीं आए, यू डू नॉट नीड टू फील नेगेटिव अबाउट इट. एंड आई थिंक वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि आई विल डू कम बैक. राइट And for every other student, always remember that, as ma'am said, there will be something which you are not knowing and someone else is knowing. तो इस बात को याद रखते हुए कम्युनिटी बिल्डिंग एटीट्यूड होना चाहिए. You should support all your peers, ताकि सब एक साथ ग्रो हो सके. So with this we are moving to a concluding end. So what 3 advice you would like to give students which will help them, either they are in 10th 12th any phase of life, और शायद उन्हें आगे भी प्रोफेशनल जर्नी में वो काम आए. Okay. I think starting I would say whatever you're doing, जो भी आप कर रहे हो, just अंडरस्टैंड वॉट यूर डूइंग. मतलब डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग. आप आज अगर आप साइंस करके LLB में आ रहे हो तो ये मत, डोंट जंप इन टू LLB, किसी ने बोला है. आप थोड़ा सा रिसर्च, आई वुड से रिसर्च अपना, स्टार्ट रिसर्चिंग. नंबर 1 इज, अगर आप रिसर्च करोगे यू विल गेट क्लैरिटी अराउंड थिंग्स एंड इट विल हेल्प यू. चाहे आप 10th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे आप कोई कॉम्पिटिटिव कर रहे हो, तो आपके पेरेंट्स और फ्रेंड्स तो गाइड करेंगे, योर रिलेटिव्स विल गाइड यू, बट सर्च करना सीखो. And now, like you said, OpenAI platforms, अगर आप उसको देखो, it's a boon for you. Search what you're confused about. Reach out to your teachers and search things. खुद से आप वो search वाला attitude लाओगे, so it'll help you a lot. So first, I would say search, अपना build that skill की जाननी है चीजें. Explore the area. Explore the area, जानो चीजें. Second, I would say थोड़ा सा आपको, आई वुड नॉट से हार्ड वर्क, क्योंकि हार्ड वर्क इतना कॉमन हो गया है कि लोग बोलते हैं हार्ड वर्क करी तो रेड, मतलब जस्ट बी, आई वुड डोंट लाई टू योर सेल्फ कि आपने अगर एक दिन में आपने बोला है कि मैं 1 चैप्टर करूंगी या 4 घंटे पढ़ूंगा, तो अगर आप नहीं कर पाए तो
एक्नॉलेज कि आपसे नहीं हुआ You है. will say it a commitment factor. हाँ, कमिटमेंट मतलब एंड कमिटमेंट या अकाउंटेबिलिटी, वो आप बड़े Right. होके अगर आप व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग तो वो अकाउंटेबिलिटी में खुद ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. True. आपको अगर 2 काम करने हैं ऑफिस में, आप एक दिन नेटफ्लिक्स देख रहे हो और एक काम कर रहे हो तो नहीं होगा काम, आपके पास प्रेशर आएगा. सिमिलरली जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी श्योर कि हाँ, इफ आई हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू इट. अब वो उसमें आप फिर बहाने मत ढूंढो एंड सेट योर गोल्स, छोटे छोटे गोल्स से स्टार्ट करो. दैट इज ऑल्सो आई वुड से एज एन एडवाइस. जस्ट डोंट थिंक कि मैं पूरा एग्जामिनेशन कर लूंगा. स्टार्ट विद वेरी स्मॉल गोल्स. एंड व्हाट आई डिड, व्हाट रियली हेल्प मी वाज आई यूज्ड टू प्रिपेयर आपका पूरे सिलेबस का ऑन जस्ट 1 शीट. एक्सेल ले लो या कोई पेपर ले लो, पुट डाउन ऑल द टॉपिक्स, ऑल द चैप्टर्स प्रोबेबली, और एनालाइज करो किसको कितने दिन लगेंगे. अपने हिसाब से आपको 5 लग सकते हैं, मुझे 2, किसी को 7. तो अपने हिसाब से आपको लग रहा है कि आपको इतने दिन लगेंगे. राइट डाउन दोस नंबर ऑफ डेज इन दैट शीट. देन कैलकुलेट कि आपको ओवरऑल कितना टाइम लग रहा है इस पूरे इसको कवर करने में. उसमें एक्स्ट्रा भी रख लो मिसलेनियस चीजें. एंड देन वंस यू हैव दैट चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू, उस चार्ट के थ्रू अगर आपने 7 डेज लिखे हैं तो आप देखो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं. सो इट विल गिव यू अ वेरी गुड टाइमलाइन कि आपको अपने आप से टाइमलाइन मिल जाएगा कि मैं इसमें कम हूँ, इसमें कम हूँ. पर अगर आप 7 कर रहे हो तो आप कम से कम 8-9 दिन में तो कर ही लोगे. So I think that really helped me, and I think the students could also be you could be using this one. 100%. So thank you so much, ma'am, for Most sharing welcome, Naman. this beautiful advices, and I am sure this will gonna help our viewers a lot. So sorry. So I hope that all of you have enjoyed this session. Ma'am has shared a lot of tips, tricks, hacks with all of you. So आप अगर कोई भी फेज में हैं अभी, चाहे आप 10th में हो, 12th में हो, क्लैट कर रहे हो या 3 ईयर लॉ की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी. एंड स्पेसिफिकली जो लास्ट में मैम ने एक बोनस टिप दी है कि आपको एक अपना प्लानर बना के चलना है जहां से आप टाइम कैलकुलेट कर सको और एक्सक्यूजेस ना दे सको. तो दिस इज समथिंग विच यू should really do. So for more such informative sessions, do subscribe to our channel and follow us and hit that bell icon so that ऐसे वीडियोस आपसे मिस ना हो. Thank you so much, and thank you so much, ma'am, for joining us. Thank you. All the best to everybody.